See, look at the board, all of you. Yes. बच्चे get separated if the benches are vacant. This group is making a lot of mess in the class. Better to get separated. Anik, go there. नमन के पीछे वाले बेंच पे. नवकरण, you दिख जाएगा. नवकरण, you also come here. बच्चे टाइम अपना वेस्ट मत करो, बहुत कुछ रिवाइज करने वाला पड़ा है. कुंदास, come here. Hurry up. जल्दी से आ जाओ इधर. कुंताज सिंह, come here. Hurry up, get separated. नहीं, मुझे काउंट करने पड़ेंगे. काउंट करो बेटे, स्टूडेंट्स काउंट करो. Yes, quiet now. Look at the board. This is to be divided by this. You know, whenever division sign is there, what we need to do? First term, numerator, and the second term will be written as denominator. First term as numerator. First term as numerator and the second term as. Now we just need to do the cutting. 17 के टेबल पे I am cutting it directly. This is x cube, this is x. Get cancelled x square. Y square, y cube, get cancelled y. Z cube, z cube, cancel. So this becomes 2/3 x square y. Come to the second question. I am taking its second part. 3y raised to power 8 minus 4y raised to power 6 plus 5y raised to power 4 divided by y raised to power 4. Divided by y raised to power 4. What we need to do? Whatever is written in the denominator, that will be written under each and every term. हर एक term के इसको नीचे लिख दो. हाँ जी. बेटे x क्यूब था, यहाँ पे x की पावर 1 थी, कटिंग होएगी x की पावर 2 बच जाएगी. यहाँ पे y क्यूब था, यहाँ पे y की पावर 2 थी, कटिंग होएगी. कटिंग में आपको पता है डिवीजन में पावर्स क्या होती हैं? माइनस. ठीक है, चलिए लिसन. दिस इज लाइक दिस यू हैव रिटन. नाउ दिस इज कंसिस्टिंग ऑफ 3 क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 ये, क्वेश्चन नंबर 2 ये और क्वेश्चन नंबर 3 ये. सो विल डील इट अकॉर्डिंगली. डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्टेड, y रेज़ टू पावर 8 y रेज़ टू पावर 4 कैंसिल. कितना बचा? y रेज़ टू पावर 4 6 से कैंसिल, 4 cancel. This way you will do the division. I am taking fifth part. Rest of the parts you will do on your revision notebooks. I am taking fifth part of second question. P raised to power q, q raised to power 6 minus p raised to power 6, q raised to power cube divided by p raised to power 3, q raised to power 3. Yesterday we have discussed splitting the middle term. Those who have attended the class online, they might have known that how to do. Now what to do? Under each and every term you will write this. Okay? So you will be having p cube, q raised to power 6, p cube, q raised to power 3 minus p raised to power 6, q raised to power 3, p raised to power 3, q raised to power 3. This is very easy. Whatever is in the denominator, that will be written under each and every term. इसके नीचे भी लिख दिया and इसके नीचे भी लिख दिया. Now this p cube get cancelled. q raised to power 3 6 से कितना बचेगा? 3 माइनस करके p raised to power 3 6 से कैंसिल होगा p3 q. तो यहाँ पे हमारे पास आया q minus p3. Rest of the parts of the same question you will do on your revision notebook. Let us start with question number 3rd, and I am taking its third part first.
थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट. सी 10y into 6y plus 21 divided by 5 into 2y plus 7. ये हमारे पास, ठीक है. So what we need to do, we will just write it accordingly. This is the numerator, 10y into 6y plus 21 divided by 5 into 2y plus 7. अब पहले हम ये देखेंगे कि कितनी कटिंग हम कर सकते हैं. हम सिर्फ इतनी कटिंग कर सकते हैं. 5 2 10, 2y 6y plus 21 over 2y plus 7. हमेशा याद रखना, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो छोटा होगा और जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो बड़ा होगा. हमने जितनी भी डिवीजन करी है हम यही करते थे, 5 डिवाइडेड बाय 2. बहुत कम बार ऐसा हुआ कि हमने 2 को 5 से डिवाइड किया. कभी कभी डेसिमल वाली आ जाती थी, बट पॉलिनोमियल्स के केस में हमारे पास बड़ा नंबर ऊपर होगा, छोटा नंबर नीचे. तो आपको पता है कॉमन हमेशा बड़ी चीज से निकलता है. इसमें से कुछ कॉमन निकलने के चांसेस नहीं होंगे, चांसेस होंगे अपर वाली टर्म में से. अब यहां से आप मुझे ये बताओ, इसको एज अ सिंगल क्वेश्चन ट्रीट करो. वी नो दैट व्हेन देयर आर टू टर्म्स वी डू टेक द कॉमन आउट. सो 6 and 21 में से कौन कॉमन आएगा? 3. तो यू विल राइट 2y into 3. 3 बाहर आया, 3 2s are 6. सो अंदर क्या बचा? 2y plus 3 7s are 21. अंदर क्या बचा? 7. आप देखा करोगे कि जब भी आप कॉमन लेते हो या कुछ करते हो, आपका जो ब्रैकेट है वो नीचे वाले ब्रैकेट के साथ ही सेम हो जाया करेगा और वो कैंसिल हो जाया करेगा. और आंसर कितना बन गया? 6y. 2y into 3y. यहां से हमने कॉमन लिया 6 and 21 में से. बिगर मोस्ट टेबल इन विच बोथ लाई इज 3. 3 कॉमन, इनसाइड इट इज 2y plus 7. ये कैंसिल हुआ, 3 2s are 6y. 7 कैसे आया? 3 कॉमन लिया, 3 7s are 21. लिसन, ऐसे नहीं कर सकते बेटे. कभी ऐसा हुआ था कि 5 plus 4 over 10 plus 2 को हम 5 by 10 plus 4 by 2 लिख दे? तो हाउ? ये सिर्फ तभी होगा जब नीचे एक टर्म होगी, तभी हम दे सकते हैं इसको नीचे ये, इसके नीचे ये. पर अगर नीचे दो टर्म्स हैं, we can't scatter the term like this. फिर हमें कॉमन नहीं लेना पड़ेगा. मैम हम न्यूमरेटर अलग लेके सॉल्व कर सकते हैं. जैसे सपोज दैट बाय 6y ब्रैकेट्स की बात. लग क्यों? क्वेश्चन के साथ ही करो, लग क्यों करना? लिखना तो वहीं पे पढ़ना है ना. चलिए, so now I am doing its fifth part. Rest of the parts you will do on your practice notebook. Fifth part I am taking 96ABC, 3a minus 12, 5b minus 30 is to be divided by 144 into a minus 4 into b minus 6. ये हमारे पास. सबसे पहले तो सिंगल सिंगल नंबर की जो कटिंग हो रही है उसको कर दो. ठीक है, 96 है और यहाँ पे 144 है. तो आप इसको 4 के टेबल पे भी कर सकते हो, सीधा 12 के टेबल पे भी कर सकते हो. फिर से हो जाएगी कटिंग 4 के टेबल पे. दिस कम्स आउट टू बी 2 by 3 into BC. ये हो गया. अब देखो नीचे वाले जो हमारे ब्रैकेट्स हैं वो स्मॉलर होंगे, ऊपर वाले बड़े. ऊपर वालों में से कुछ ना कुछ कॉमन आएगा. अगर मैं फर्स्ट ब्रैकेट की बात करूं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 12 है. कौन कॉमन आएगा? दो ऐसा टेबल जिसमें 3 और 12 दोनों आते हैं, 3 का टेबल. सो मल्टीप्लाई का साइन, 3 का टेबल. अंदर बचा a, 3 4s are 12. ओके, 3 कॉमन ले लिया. यहां में से 5 and 30 में से 5 का टेबल है जिसमें दोनों बैठे हैं, so we will take 5 कॉमन. अंदर बचा b minus 6 and in the denominator it is a minus 4, b minus 6. Now this a minus 4 and a minus 4 get cancelled. b minus 6, b minus 6 get cancelled. तो आपके पास जो जो ऊपर बचा, आप देखो ध्यान से, ऊपर 3 है, नीचे भी 3 है, ये भी कैंसिल हो गया.
अब ऊपर बचा 2abc into 5, क्या बना 10abc आंसर. Rest of the parts will be your homework. Now I am taking fourth question, third part. हाँ जी बेटे 3 कॉमन लिया इनमें से, अंदर बचा a माइनस 3 4 जा 12. जिसको कॉमन लेंगे उसी टेबल के साथ डिवाइड करके अंदर लिखेंगे. Come to, I'm announcing fourth question. Which part? Third part. 52 PQR, P plus Q, Q plus R, R plus P divided by 104 PQ, Q plus R, R plus P. Right? अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे नथिंग इज टू बी टेकन एज कॉमन, सीधा ही हमारे पास कटिंग हो रही है. 52 के टेबल पे 104 कटिंग हो जाएगा, 52 टू जा, P P के साथ कैंसिल, Q Q के साथ कैंसिल, एनीथिंग व्हिच कैन गेट कैंसिल्ड. ऊपर नीचे कुछ सेम लग रहा है, Q प्लस R, Q प्लस R, R प्लस P, R प्लस P. ऊपर क्या बचा R इंटू P प्लस Q एंड नीचे क्या बचा 2. एक चीज मैं बता दूं, बच्चे कटिंग वटिंग सब कर लेते हैं, बट व्हेन दे आर फाइनलाइजिंग द आंसर वो भूल ही जाते हैं कि ऊपर वाली चीजें भी लिखनी है ऊपर और नीचे वाली. कुछ बच्चे आंसर पता क्या लिख के आएंगे, R इंटू P प्लस Q, नीचे वाला 2 भूल ही जाएंगे. पूरा देखना है कि ऊपर क्या बचा वो भी लिखना है, जो नीचे बचा है वो भी लिखना है. हाँ लिखो. So now I am taking fourth question, fourth part. Fourth part of the question is 20 into y plus 4, y square plus 5y plus 3 divided by 5 into y plus 4. बच्चे चॉक्स बहुत कम ले, कृतिका चॉक्स लेके आओ. अलमीरा बंद है, कृतिका लेके आओ साथ वाली क्लास में से. नहीं कृतिका जाओ लेके आओ. y स्क्वायर प्लस 5y, y प्लस 4. जो ये वाला क्वेश्चन था इसमें ऊपर वाली चीज अब न्यूमरेटर अलग से सॉल्व करके फिर लिख सकते हैं. बेटे क्यों इतना करना, ऊपर ही करते जाओ सॉल्व. यस क्लास, लुक एट द बोर्ड and equate. So numerator is like this and denominator is like this. बच्चे कीप वन थिंग इन योर माइंड कि हमारे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की कटिंग करनी है हमें, तो जितनी कटिंग तो डायरेक्टली पॉसिबल है उसको कर दो. 5 4 जा ये बच्चे, I think directly this is the answer. मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो आप. चलिए फिफ्थ क्वेश्चन, कम टू क्वेश्चन नंबर 5. I am taking second part, fifth question. M square minus 14m minus 32 divided by m plus 2 divided by m plus 2. अब देखो यहाँ पे एक चीज आपने ध्यान में रखनी है. सबसे पहले तो वही स्टेप that this is a numerator and this is denominator is to be written below. अब पिछले क्वेश्चंस में क्या था, we take common, we get the identical factors, they got cancelled. But ऐसे क्वेश्चंस में you see what is the degree of this 1, what is the degree of this 2. Maximum power is the degree. यहाँ पे 2 है, 2 डिग्री वाली को क्वाड्रेटिक बोलते हैं, 1 डिग्री वाली को लीनियर बोलते हैं. तो ऐसे केसेस में हम डायरेक्टली इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते. आपके पास 2 तरीके होंगे. वन आई टोल्ड यू दैट यू कैन गो विद द लॉन्ग डिवीजन
और you can factorize the middle term in the numerator. कल हमने splitting the middle term का मेथड सीखा था. हम ऊपर वाले फैक्टर्स को splitting the middle term करके दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे. अब splitting the middle term क्या मेथड था? 1 into 32 32. हमें 32 बनाना है. 1 से शुरू करें. 1 और 32 से 32 तो बन रहा है, बट 132 से 14 नहीं बन रहा. This is a wrong choice. We are not going with that. Let us start with the second. 2 and 16 से 32 बन रहा है क्या? 2 and 16 से 14 बन रहा है? बन रहा है. तो I told you, first of all, साइन के बिना इसको ऐसे ही लिख लो. बिना साइन के लिख लिया. ऐसे लिख लिया बिना साइन के. Now, what is the sign of the answer? माइनस. तो बड़े नंबर के आगे माइनस. अगर मैं यहाँ माइनस लगाती हूँ तो ये 18 बन जाएगा. बट आई शुड पुट हियर प्लस, बिकॉज प्लस माइनस माइनस, 16 में से 2 गया 14. साइंस जिसको डिसाइड करने आ गए उसके लिए मुश्किल नहीं है. आंसर का साइन हमेशा बड़े नंबर को दे दो और दूसरे नंबर का साइन उसके अकॉर्डिंगली क्या कर लो, एडजस्ट कर लो. ओके. नाउ इस क्वेश्चन में 4 टर्म्स आ गई. इनको 4 टर्म्स वाले मेथड के साथ रिकॉल करो. क्या था? 2 को कंबाइन करो. पहले 2 को कंबाइन किया. इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? m कॉमन आ रहा है. यहाँ पे m की पावर 2 है, m की पावर 1 है, m की पावर 1 कॉमन आ गई. सो इनसाइड m की पावर 2 में से m बाहर गया, क्या बचा? m प्लस 2m में से m 2. अब आइए यहाँ पे. नाउ सी, आप सबको पता है 16 एंड 32 बड़े से बड़ा टेबल जिसमें दोनों बैठे हैं 16 तो कॉमन मैं ले ही लूंगी, बट साइन की प्रॉब्लम है. देखना, what is the sign of m? Plus. What is the sign of m? Minus. What is the sign of constant? Plus. What is the sign of constant? Minus. यानी कि हमारे साइंस पहले ब्रैकेट के साइन से उल्टे हैं. तो which sign is to be taken as common? माइनस 16 बाहर गया, अंदर बचा m. इस माइनस ने इस माइनस को क्या बना दिया? प्लस. एंड 16 2 जा 32. अब आप जो सेम वाले ब्रैकेट हैं उनमें से एक लिख लो. दैट मींस m plus 2 and those who are scattered combine them, m minus 16 and in the denominator m plus 2. This get cancelled. The answer is m minus 16. कौन सा 16? ये कॉमन लिया दोनों में से. 16 के 32 16 के टेबल पे 2 नंबर पे आता है तो यहाँ 2 आ गया. हाँ जी बेटे. वन मोर क्वेश्चन आई वुड लाइक टू टीच एंड लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6. इसका 6th पार्ट देखो. सारे जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे बाकी के पार्ट्स तब तक पेपर में नहीं कर पाओगे. प्लीज माइंड इट. लेट अस डू इट. नवकरण आप तो बेटे अच्छे से पढ़ लो, उसने तो पढ़ना नहीं है जो बैक बेंच पे बैठा है. 6th पार्ट. 12xy 9x square minus 16y square is to be divided by 4xy 3x plus 4y. This is the question. First of all, जो हमारे पास सिंगल टर्म है, नंबर है, उसको हम इसके साथ कटिंग कर देते हैं. 3 into 9x square minus 16y square. ये चीज है बेटे. देखो ध्यान से. अर्लियर ये जो क्वेश्चन थे इसमें हमने इसके जैसे फैक्टर ढूंढने की कोशिश की और हमें पता लगा कि यहाँ पे स्प्लिटिंग का मिडल टर्म चलेगी. ठीक है. अब आप मुझे ये बताओ, जब भी आपके पास 2 टर्म्स होती हैं, या तो आप कॉमन लेते हो, कॉमन निकल नहीं रहा, माइनस का साइन है बीच में. जब कॉमन नहीं निकलता, बीच में माइनस का साइन हो, कौन सी आइडेंटिटी होती है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो सबसे पहले हम इसको स्क्वायर्स में कन्वर्ट करते हैं. 9x स्क्वायर कैसे लिखा जा सकता है? 3x का स्क्वायर एंड 16y स्क्वायर 4y का स्क्वायर. दिस एक्सरसाइज इज जस्ट अ रिवीजन ऑफ द प्रीवियस एक्सरसाइजेस, क्योंकि जो हमने सिंगल क्वेश्चंस किए थे वो एक ही क्वेश्चन में इकट्ठे होके आ रहे हैं. ठीक है. सो आई एम कन्वर्टिंग देम एज द स्क्वायर ऑफ सर्टेन नंबर. नाउ यू सी, दिस इज 3 a square minus b square. What it will become? a plus b, a minus b, right? And it is 3x plus 4y. Is it clear? That means 3 into 3x plus 4y
3x minus 4y over 3x plus 4y. 3x plus 4y, 3x plus 4y get cancelled. So we are left with 3 into 3x minus 4y. प्लस वाले क्यों? प्लस वाला प्लस के साथ ही कैंसिल होगा है? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये दोनों एक जैसे थे, कैंसिल हो गए, ये बचा। चलिए, वन मोर पार्ट आई वुड लाइक टू टेक, लेट अस स्टार्ट विद हाँ क्वेश्चन बुक भी देखो साथ साथ। सेवंथ पार्ट, लुक एट द सेवंथ पार्ट। $39y cube 50y square minus 98 divided by 26y square 5y plus 7। पहले तो हमने कटिंग करनी है, जो भी कटिंग हो सकती है, बाकियों को बाद में डील करते हैं। पहले सबसे पहले जितनी कटिंग हो सकती है पॉसिबल है, डू दैट मच कटिंग। ये 13 के टेबल पे, और y स्क्वायर y क्यूब कैंसिल, कितना बचा? y। ये आ गया। दो टर्म्स वाले क्वेश्चन में सबसे पहला हमारा टारगेट होता है कि इफ यू कैन टेक कॉमन वी विल टेक कॉमन। अब 50 एंड 98 बिगर मोस्ट टेबल इन विच बोथ लाई। कौन सा टेबल है 50 और 98 जिसमें बैठे हुए हैं? बड़े से बड़ा टेबल 2 का टेबल है, उसको छोड़ के कोई टेबल नहीं है जिसमें दोनों बैठे हैं। So we can take 2 as common and inside 50 में से 2 कॉमन हो गया, कितना बचा? 25 and 98 में से 49। अब कॉमन लेने के बाद, कॉमन हम ले चुके, क्या सेकंड स्टेप क्या होता है? We can use some identity। हाँ जी बेटे, कौन सी आइडेंटिटी यूज होने के चांसेस है प्लीज आप बताओ? थर्ड डॉल, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप बताओ मुझे 25y स्क्वायर को मैं किसका स्क्वायर लिख सकती हूँ? 25y स्क्वायर किसका स्क्वायर लिखा जा सकता है? वेरी गुड, 5y का स्क्वायर। एंड व्हाट अबाउट 49? 49 को किसका, प्लीज पूछ रही हूँ ना मैं उससे, 7 का स्क्वायर। ठीक है, नाउ वी कैन अप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अक्षत नेक्स्ट स्टेप बताओ। दिस बॉय फर्स्ट, पार्थिव। हाँ, कैसे कटिंग हो जाएगी प्लीज उसको सोचने दो। कौन सी? शाबाश, कैसे लगाएंगे? वाई, वेरी गुड, शाबाश, बैठ जाओ। a प्लस बी, a माइनस बी, आइडेंटिटी ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब कटिंग होएगी एंड योर आंसर इज 3y into y। Rest of the parts you will do as you can say homework on your revision notebook। Okay, बाकी के पार्ट्स आप रिवीजन नोटबुक पे करोगे। हाँ, 2 से 2 कट गया, खत्म हो गया 2। Now listen, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है टू फाइंड द क्या था एरर, वो अपने आप कर लेना, वो उसमें से मैं नहीं कुछ करवा रही। मैंने 14.3 तक आपको अच्छे से, हाँ मैंने तो बोला ही नहीं आएगी नहीं, मैंने कहा उसको 14.4 अपने आप प्रैक्टिस करना, क्योंकि इसमें एरर फाइंड करना है, इजीली हो जाएगा। सॉल्व करके देखो, अगर आपका सॉल्व दूसरे के सॉल्व से नहीं मिलता दैट इज एरर। हाँ, एरर्स वाले। हाँ जी लिसन, अगर टाइम मिला बाद में करवा भी दूंगी, पर फॉर टाइम बिंग आई एम, हाँ ऐसे एरर हो जाए। यस बच्चे लिसन, आप सीधा लिख दोगे दिस कांट बी इक्वल टू दिस, जिसमें सॉल्व नहीं हो रहा। हाँ, अवधि, चाहत, जपजी, तानिश, विरन, ख्याति, मनमीत। बच्चे आई रिक्वेस्ट यू दैट रिवीजन is going on, revision test will be held very soon, so better to come to school, right? पिछले टेस्ट में आप लोगों की परफॉर्मेंस कुछ इतनी अच्छी नहीं थी, so if you want to improve yourself, please be 100% devoted towards your studies, only then you can do the things properly. Quite
हाँ 34 स्टूडेंट्स आगे हुए हैं, बट उसमें से 27 ही हमारे पास हैं, और जो 7 है अंकित का कुछ अता पता नहीं। देखो एक दिन क्लास लगाता है, हफ्ता फिर एब्सेंट, हफ्ता एब्सेंट है। हाँ बढ़ा दो, अभी रुक जाओ, वेट। हाँ जी लिसन, सो मेरी तरफ से फैक्टराइजेशन मैंने एक एक क्वेश्चन यहाँ पे करवाया है, तो आप tomorrow is holiday, after tomorrow when you people will come, firstly I will check your revision notebook whether you have revised factorization chapter on your notebook or not, along with the error वाली exercise, ठीक है? And day after tomorrow we will start with the revision of linear equations.